guys, welcome to this new video series of information technology, which is a subject for 12th standard HSC. And guys, if you like my videos, then subscribe my channel and press on the bell button so that when we upload our videos, then you will get a notification. So here we are going to study types of digital marketing. Okay, there are 4 types of digital marketing: search engine optimization, search engine marketing, social media optimization, that is a SMO, and SMM for social media marketing. Okay, now here we are studying only the introduction of this part. Okay, only search engine optimization we are going to study deeply, but the SEM, SMO, and SMM, these 3 parts, just introduction we are going to study. Okay, see, SEO. Here is the figure. SEO, search engine marketing, search engine optimization. Okay, now search engine optimization. Here is a search engine optimization. What it means? The digital marketing in a search engine. Okay, when we are going to capture a market, when we are going to do marketing using a search engine, then it comes in 2 types, that is unpaid marketing or paid marketing. When you are paying some amount to the search engine for digital marketing, then that part is called as SEM, that is search engine marketing. Okay, but if you are not paying anything to search engine, but even though you are doing digital marketing, then it's known as unpaid marketing. Unpaid marketing means here is a search engine optimization. So unpaid marketing means search engine optimization, where you're not paying anything to search engine, and when you are paying some amount to search engine, then that is called the paid marketing. It is known as a search engine marketing. In similar way, here is a SMO and SMM. SMO stands for social media optimization. Here we are not paying anything to the social media company, but even though we can promote our product on social media, that concept is called unpaid marketing, which is known as social media optimization. Means without paying anything, you are promoting your products on social media. But in opposite, here is a social media marketing. Here is a social media marketing. When you are paying some amount to social media company and you are promoting your product, then it's called paid marketing, and the paid marketing is known as social media marketing. Okay, so these are the 4 types of digital marketing. Search engine optimization, where you are not paying to search engine, but even though you can promote your content or promote your product on internet by using search engine. And SEM means search engine marketing, where you are paying some amount to search engine for promoting their products, promoting their websites, or promoting their contents. Okay, in social media field, digital marketing in social media is categorized in 2 parts: unpaid marketing and paid marketing. When unpaid marketing means you are not paying anything to the social media company, even though you are promoting your product, and it is called social media optimization. And social media marketing, where you are paying some amount to social media like Facebook, Instagram, and other social media are available on internet. Okay, so if you are paying some amount to promote the product, then that marketing is called paid marketing, and it comes under social media marketing. Okay, so there are 4 types: search engine optimization, search engine marketing, social media optimization, and social media marketing. Now here is the actual definition of the search engine optimization. What is said? It is a technique used while designing and developing any website to rank high in SERP. Okay, it's a part of digital or internet marketing. The last sentence, it is a part of digital marketing, that we have studied in previous slide. Okay, now see here, what is search engine optimization? It's a technique. क्या होता है? टेक्निक होती है used while designing and developing. जब हम एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उसके पहले हम लोग को ये टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है
इसका यूज हमें ऐसे करना होता है कि हमारे वेबसाइट जब कोई सर्च करे या हमारा वेबसाइट में कंटेंट जो रहेगा वो कंटेंट अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट की लिस्ट एसईआरपी में, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हाई रैंक पे दिखाई दे, यानी टॉप लिस्टिंग में दिखाई दे। ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमारे वेबसाइट को ऐसे डिजाइन करनी होती है, हमारी वेबसाइट को ऐसे डेवलप करना होता है कि हमारी वेबसाइट कोई भी कीवर्ड्स अगर उसके रिलेटेड सर्च किया जाए, उस वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड एक दूसरा कीवर्ड अगर डाला जाए तो उस कीवर्ड के हिसाब से हमारी वेबसाइट एसईआरपी में हाई रैंक करे, इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, ये हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया है कि एक बार सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया वेबसाइट का तो आपको रुकने से नहीं होता। वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको जब तक आपकी वेबसाइट टॉप लिस्टिंग में रखनी है तब तक आपको करनी होती है। So it is a technique used while designing and developing any website to rank high in SERP, and it's a part of digital or internet marketing. Now here we are going to study why we are using the search engine optimization. उसकी जरूरत क्या है, क्यों चाहिए SEO? SEO के बिना हम अपनी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले पॉइंट क्या बताता है, optimizing your site will help to deliver better information to search engine so that your content can be properly indexed and displayed within search result. इसका मतलब क्या होता है कि कोई वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो उस वेबसाइट का जो कंटेंट रहेगा, जो इंफॉर्मेशन रहेगी, वो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के डेटाबेस में हम लोग को फीड करनी होती है। कई टाइम हम लोग अपने मैन्युअली वो फीड करते हैं, तो कई बार ये जो सर्च इंजन रहता है, ये सर्च इंजन आपकी वेबसाइट लेके उस वेबसाइट में जो कंटेंट रहेगा उस कंटेंट का अपने हिसाब से डेटाबेस बनाते हैं, अपने हिसाब से कैटेगरी बनाते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, जिसको कहा जाता है इंडेक्सिंग। ओके, जब वेबसाइट क्रिएट होती है तो वेबसाइट का कंटेंट सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उस टेक्निक को कहा जाता है इंडेक्सिंग। ओके, तो इंडेक्सिंग किया जाता है सर्च इंजन में। तो हमारे वेबसाइट हम लोग को ऐसी ऑप्टिमाइज करनी होती है कि उस वेबसाइट में बेटर इंफॉर्मेशन हो, कंटेंट ऐसा प्रॉपरली रखना चाहिए, उस कंटेंट रिलेटिव होना चाहिए कि जो सर्च इंजन खुद करके उस डेटा को और कंटेंट को कैटेगरी वाइज अपने डेटाबेस में स्टोर करे। ओके, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोग को वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। सेकेंड पॉइंट होता है, दिस इज ओनली चैनल यूजिंग व्हिच यू कैन डू फ्री डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो ये एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करने का एक ऐसा मीडिया है जिससे हम फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट पेइंग एनीथिंग टू सर्च इंजन, हम लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, हाई रैंक ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट सेज दैट इट हेल्प्स टू मेक ट्रस्टवर्दी एंड यूनिकनेस ऑन वेबसाइट। ओके, ये क्या करता है कि अपनी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, यानी उसमें जो डेटा है उस डेटा को रीड करके यूजर उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि ये डेटा ट्रू है, ये सच्चा है, इसमें कोई खोट नहीं है। और उस वेबसाइट का जो डेटा रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो यूनिक है, कहीं दूसरे वेबसाइट से कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं है। ये जो यूनिकनेस रहता है, ये जो ट्रस्टवर्दी क्रिएट करनी होती है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हम क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, इट मेक्स द क्वालिटी कंटेंट ऑन वेबसाइट एज वेल एज इट क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक फॉर योर वेबसाइट। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें ऐसा करना होता है कि हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट का वो क्वालिटी कंटेंट बने। कोई यूजर अगर हमारे वेबसाइट ओपन करते हैं तो यूजर को ये जो कंटेंट हमने वेबसाइट पे दिया हुआ है वो इफेक्टिव नजर आए, वो यूजफुल नजर आए। दूसरी बात, हम लोग जब वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, यानी दूसरे वेबसाइट पे जाके हम लोग रेफरेंस अपने वेबसाइट का देते हैं, वो बैकलिंक्स भी हम लोग की क्वालिटेटिव होनी चाहिए। अगर बैकलिंक अच्छे रहेंगे
रिलेटिव कंटेंट से बैकलिंक रहेंगे, तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके हम अपनी वेबसाइट को हाई रैंक पे ला सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये दो चीजें करनी होती है हमें। ऑन पेज एसईओ एक को कहा जाता है जब हम क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट पे, और दूसरा जो हम लोग बैकलिंक बनाते हैं दूसरे वेबसाइट पे उसको कहा जाता है ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे हम लोग इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करनी होती है, तभी हमारी वेबसाइट हाई रैंक पे आती है, वो पहले पेज पे दिखाई होती है देती है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करें, तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे हम लोग जब डालते हैं और उस वेबसाइट को ज्यादा से लोगों तक हमें पहुंचाना होता है, तो उसके लिए हमारे वेबसाइट सिर्फ बना के हम लोग को फायदा नहीं है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जब कोई कंटेंट सर्च किया जाए उस कंटेंट में अपनी वेबसाइट हाई रैंक पे दिखाई दे, कोई कीवर्ड सर्च किया जाता है तो उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट हाई रैंक पे दिखाई दे, तभी उस वेबसाइट को ज्यादातर लोग यूज करेंगे या ओपन करेंगे। तो ये अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, यानी उसका रीच अगर हमें बढ़ाना है, वेबसाइट का रीच अगर हम लोग को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स कौन से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट स्लाइड दैट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ तो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मींस वर्क ऑन योर ओन वेबसाइट, एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वर्क ऑन अदर वेबसाइट सो दैट योर वेबसाइट गेट हाई रैंक। ओके, तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होता है, अपने वेबसाइट पे ऐसा काम करो, अपने वेबसाइट पे ऐसे चेंजेस करो कि अपनी वेबसाइट हाई रैंक पाले। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, दूसरों के वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट डालो कि जिसके वजह से अपनी वेबसाइट हाई रैंक पाए। ओके, तो आपको समझ में आया रहेगा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में अपने वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना होता है, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे दूसरे के वेबसाइट पे जाके हम लोग को कंटेंट बढ़ाना होता है, कंटेंट चेंज करना होता है या कंटेंट ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये मीनिंग है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का। अब हम लोग मोर डिटेल देखते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, व्हाट इट इंक्लूड्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ यूनिक, वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अगर वेबसाइट आपका ऑप्टिमाइज करना होता है, एक पेज अगर हम लोग कंसीडर करते हैं वेबसाइट का, उस पेज को अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए उस वेब पेज पे यूनिक कंटेंट चाहिए। यूनिक यानी दूसरे वेबसाइट पे जो कंटेंट रहेगा वो कॉपी के पेस्ट किया हुआ नहीं चाहिए। जो कंटेंट आपके वेब पेज पे रहेगा वो वैल्यूएबल चाहिए। वैल्यूएबल यानी क्या, उस कंटेंट को अगर कोई रीड करने के लिए शुरुआत करे तो उसको वो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि ये वेब पेज पे बहुत अच्छी तरह से कंटेंट दिया है, वैल्यूएबल कंटेंट से वो पूरा पेज उसने पढ़ना चाहिए, ऐसा कंटेंट उसमें होना चाहिए। एंड रिलेवेंट कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट यानी जिस ऑब्जेक्टिव उसमें मन में लेके वो वेब पेज ओपन किया है, ओके, वो कंटेंट जिसके लिए वो सर्च कर रहा है वही कंटेंट उसको उस वेब पेज पे मिलना चाहिए। If he is not getting the relevant content, then within a second he will jump on next web page or next website. Okay, तो relevant content होना चाहिए, valuable content होना चाहिए, और it must be unique, तभी आपका वेबसाइट जो रहेगा वो वेबसाइट सर्च इंजन को एक वैल्यूएबल वेबसाइट लगती है और उस वेबसाइट का रैंक वो सर्च इंजन हाई करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, द कंटेंट शुड बी यूनिक, वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट। सेकंड पॉइंट है सेलेक्टिंग यूनिक एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स। ओके, ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो कीवर्ड्स आप अपने वेबसाइट के कंटेंट में यूज करते हो, जो कीवर्ड आपके पेज पे आप यूज करते हो, वो वेब पेज पे यूज किया हुआ कीवर्ड यूनिक होना चाहिए और रिलेवेंट टू कंटेंट होना चाहिए। देखिए, अगर वेबसाइट देख लें तो उसमें बहुत सारे वेब पेजेस रहते हैं
और बहुत सारे वेब पेजेस हम लोग इकट्ठा करके एक वेबसाइट बनाते हैं। ओके, जब हम ये बहुत सारे वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो एक एक पेज जो रहेगा उस पेज पे अलग अलग इंफॉर्मेशन रहती है। कंपनी एक ही रहती है लेकिन कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, कंपनी की अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन रहेगी, वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज पे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो जब हम ये वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो ईच एंड एवरी वेब पेज मस्ट बी यूनिक एंड रिलेवेंट कीवर्ड। ओके, हर एक वेब पेज के लिए एक यूनिक और रिलेवेंट कीवर्ड होना चाहिए। आप इस कीवर्ड को रिपीट भी नहीं कर सकते। अगर आपने वो रिपीट किया है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के टाइम पे सर्च इंजन वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से इंफॉर्मेशन कौन से कंटेंट पे मिलेगी, कौन सा वेब पेज में लिस्ट में लाके टॉप में रखूं। ये सर्च इंजन को समझ में नहीं आता। और अगर ये समझ में नहीं आता तो सर्च इंजन क्या करता है, आपकी वेबसाइट को वो बैक लिस्ट में डाल देता है। तो क्या होना चाहिए, अपने वेब पेज पे यूनिक और रिलेवेंट कीवर्ड का यूज करना होता है। और कीवर्ड कितने होने चाहिए, रिलेवेंसी कितनी होनी चाहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट यूनिक एंड रिलेवेंट कीवर्ड मस्ट बी ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑन वेबसाइट। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड मेंटेनिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड स्पेसिफिक पोजीशन इन कंटेंट। ओके, ये जो पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड मेंटेनिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। जब आप कीवर्ड यूज करते हो एक वेब पेज पे, हम लोग सिर्फ एक वेब पेज कंसीडर करेंगे, वेबसाइट को बाजू में रखते हैं, वेब पेज कंसीडर करिएगा। अगर एक वेब पेज आप यहाँ पे कंसीडर करते हो तो उस वेब पेज पे, यानी यहाँ पे हम लोग ये एक वेब पेज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस वेब पेज पे जो आप कीवर्ड यूज करेंगे वो कीवर्ड सबसे पहले आपको टॉप, जो यहाँ पे टॉप रहेगा पैराग्राफ, वो पैराग्राफ आपको पहले यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे यूज करने हैं। ये पहला पैराग्राफ रहेगा तो पहले पैराग्राफ में आपका कीवर्ड होना चाहिए। और वो जो कीवर्ड होना चाहिए वो कीवर्ड टाइटल या हेडिंग स्टाइल में दिखना चाहिए। H1 टैग यूज करिएगा, H2 टैग यूज करिएगा, बट हेडिंग में वो कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे जो पैराग्राफ रहेगा, यानी यहाँ पे जो पैराग्राफ रहेगा, सपोज ये जो हेडिंग है, इसके बाद ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ यहाँ पे मैंने बनाए हैं, तो 3 पैराग्राफ में हर एक पैराग्राफ में कीवर्ड होना चाहिए। तो कीवर्ड कितना होना चाहिए उसके लिए भी सर्च इंजन ने कई रूल्स रखे हुए हैं, कई टिप्स रखे हुए हैं। सर्च इंजन क्या बता रहा है कि अगर आपके कंटेंट में जितने वर्ड्स यूज किए उस वर्ड के हिसाब से 3% डेंसिटी होनी चाहिए। 3 to 4% डेंसिटी इज अलाउड बाय सर्च इंजन। कीवर्ड की डेंसिटी 3 to 4% होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो तो सर्च इंजन को यह समझ में आता है कि आप सर्च इंजन को फंसाना चाहते हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है, अगर सर्च इंजन को लगा कि आप फंसाना चाहते हैं तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी उसका रैंक वो कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड टॉप भी होना चाहिए, टॉप जितने भी पैराग्राफ रहेंगे उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3-4% से ज्यादा डेंसिटी आप यूज कर रहे हो तो ये आप सरासर फंसा रहे हैं आप सर्च इंजन को ज्यादा कीवर्ड्स यूज करके। यूजर भी यहाँ से बोर हो जाता है कि वही कीवर्ड आप फिर से यूज कर रहे हो, कंटेंट रिलेवेंट नहीं दिख रहा है, कंटेंट बहुत बढ़ा के रखा है आपने कीवर्ड ही डाल के, तो यूजर भी वहां पे कंटाल जाता है और दूसरे वेब पेज पे चला जाता है। तो ये जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो उनका जो पोजीशन रहेगा वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वो जो फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो, डेंसिटी जो यूज करते हो अपने कीवर्ड की, वो भी यहाँ पे यूजफुल होती है। और वो जो पोजीशन कहाँ पे करते हो ये भी, यानी कीवर्ड का यूज आपने कहाँ पे किया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने कवर कर दिया, प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड, its frequency and its position in content. Fourth point यहाँ पे use appropriate title and rich meta description for each page. हम लोग जब HTML चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग ने ये स्टडी किया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो एप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल में कीवर्ड हो, टाइटल एप्रोप्रिएट हो, उसकी एक लेंथ रहती है, उस लेंथ में टाइटल यूज करना होता है। रिच मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो तो उसमें भी कीवर्ड या सिनोनिम उसके यूज करने होते हैं।
तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो ये परफेक्ट होना चाहिए, टाइटल भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से ये वेबसाइट को हाई रैंक लाते हो। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइज यूआरएल नेम फॉर ईच पेज। आप जो यूआरएल यूज करते हो जैसे कि abc.htm, ओके, ये नाम आप फाइल को दे रहे हो, जो फाइल वेब पेज कहलाती है। अब इस वेब पेज का जो नाम रखते हो वो नाम भी कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो अगर वो रिलेटेड रहेगा कीवर्ड से तो ही वो सर्च इंजन में जब एक कीवर्ड सर्च किया जाएगा तो मिल जाएगा वो फाइल। ठीक है, तो इसके लिए जब आप यूआरएल यूज करते हो वेब पेज का तो वो भी ऑप्टिमाइज होना जरूरी है, वो भी कीवर्ड से रिलेटेड होना जरूरी है। तो ये सब चीजें हम कहाँ करते हैं, कौन से एरिया में करते हैं, तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये जो चीजें हैं वो हमें करनी होती है, तब हमारा पेज ऑप्टिमाइज होता है। एक एक पेज को आपको ऑप्टिमाइज करके पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। ओके, तो ये हुआ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने वेबसाइट पे हम लोग वर्क करके अपने वेबसाइट का कंटेंट हम लोग चेंज करके ऑप्टिमाइज करते हैं। सेकेंड टाइप है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में दूसरे वेबसाइट पे जाके हम लोग चेंजेस करते हैं या कोई कंटेंट ऐड करते हैं। तो व्हाट इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग। ओके, लिंक बिल्डिंग क्या होती है, तो हमारे वेबसाइट की लिंक दूसरे वेबसाइट्स पे क्रिएट करें। ओके, अभी कहीं सोशल मीडिया रहती है, कहीं कोई दूसरी वेबसाइट रहती है जो हमारी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट रहती है, कभी कोई पहले ही एक का दूसरा वेबसाइट ऐसा रहता है जो बहुत लोगों को मालूम रहता है, वो लोगों तक पहुंचा रहता है, तो उस वेबसाइट पे अपने लिंक आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इसे कहा जाता है लिंक बिल्डिंग। जैसे कोई आस्क एक कोरा नाम से एक वेबसाइट चलती है, आस्क नाम से वेबसाइट चलती है, कहीं ट्रिप एडवाइजर नाम से वेबसाइट चलती है, तो उन वेबसाइट में कई क्वेश्चन जो वहां पे पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को आंसर्स देते हुए अपने वेबसाइट का लिंक वहां पे आप दे सकते हो। ओके, तो ये कंटेंट आप 4-5 सेंटेंस का कंटेंट लिखो, अगर और जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाइएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हो कि अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो यूजर को। और जैसे ही आपके वेबसाइट के यूजर्स बढ़ेंगे, सर्च इंजन को लगेगा कि यहाँ इस वेबसाइट पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो सर्च इंजन क्या करेगा, उस वेबसाइट की पेज रैंक हाई बनाएगा। तो लिंक बिल्डिंग ये एक तरीका है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का, दूसरे वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट की लिंक बना दो। सेकंड, सबमिटिंग इन ओपन डायरेक्टरीज। अभी मार्केट में कई ओपन डायरेक्टरीज है, जैसे कि जस्ट डायल नाम से एक ओपन डायरेक्टरी है, येलो पेजेस नाम से ओपन डायरेक्टरी है, बहुत सारे ओपन डायरेक्टरीज और मार्केट में अवेलेबल है। उन ओपन डायरेक्टरीज पे आप फ्री लिस्टिंग करा सकते हो अपने बिजनेस का, उसमें अपने वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो। ओके, तो जो भी ओपन डायरेक्टरीज आप मार्केट में अवेलेबल है, उन ओपन डायरेक्टरीज में जाके अपने वेबसाइट का लिंक आप वहां पे ऐड करके, जो भी यूजर उन ओपन डायरेक्टरीज में जाएगा वहां पे सर्च करेगा तो उसको अपने वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा, अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइज करते हैं। सबमिटिंग इन ओपन डायरेक्टरीज में अपने वेबसाइट का कंटेंट, अपने वेबसाइट के प्रोफाइल दूसरे डायरेक्टरीज पे क्रिएट करो और वहां से यूजर को अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करो। तीसरा पॉइंट होता है एडिंग इन सर्च इंजन। सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन आज मार्केट में है। हम लोग सिर्फ गूगल यूज करते हैं, लेकिन याहू सर्च इंजन है, बिंग है, एमएसएन सर्च है, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन है जो हमें पता नहीं है। आप यूज अपने इंटरनेट पे जाके या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपनीज ऑफ सर्च इंजन। तो ईच एंड एवरी सर्च इंजन में अपने वेबसाइट को आप ऐड कर सकते हो, अपने वेबसाइट का इंडेक्सिंग कर सकते हो, अपने वेबसाइट का जो कंटेंट है डेटाबेस उस सर्च इंजन में आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्या होगा, सर्च इंजन में एक बार इंडेक्स बना, उसमें एक स्कीमा बना, तो उस स्कीमा की वजह से वहां पे जो स्ट्रक्चर किया गया कैटेगरी की उस कैटेगरी के हिसाब से अगर वहां पे कोई यूजर आप कंटेंट को सर्च करता है, कीवर्ड से सर्च करता है, तो वहां पे अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग दिखाई दे। इसके लिए वहां पे सर्च इंजन जितने भी रहेंगे उसमें अपना वेबसाइट का डेटाबेस ऐड होना चाहिए, अपने वेबसाइट का लिंक वहां पे ऐड होना चाहिए। तो वो आपको करना होगा। कई बार गूगल जैसे जो सर्च इंजन रहता है, याहू जैसे सर्च इंजन रहता है, वो सर्च इंजन खुद से ये करते हैं, लेकिन कई सर्च इंजन में हमें ये डेटा फीड करना होता है।
ओके, तो सर्च इंजन में अपने वेबसाइट का डेटा फीड करके भी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। फोर्थ टाइप है लिंक एक्सचेंजिंग। हमने पहले देखा लिंक बिल्डिंग, ये लास्ट का लेते लिंक एक्सचेंजिंग। इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि लिंक बिल्डिंग और लिंक एक्सचेंजिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, लिंक बिल्डिंग में क्या होता है, आप दूसरे वेबसाइट पे जाते हो, अपनी लिंक बना देते हो, उनसे कोई बोलना नहीं होता है कि आप ये लो, मैं उसके वजह से आपको मैं ये देता हूं। लेकिन लिंक एक्सचेंजिंग में ऐसा नहीं होता है। लिंक एक्सचेंजिंग में ऐसे होता है, आप देखोगे आपके एरिया में दूसरा कॉम्पिटिटर आपके आगे चल रहा है या आपके पीछे चल रहा है, तो आप उनको बोल सकते हो कि भैया ये मेरा वेबसाइट है, ये आपका वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में आपका वेबसाइट का भी लिंक देता हूं, मेरे वेबसाइट का लिंक आप अपने वेबसाइट पे दे दो, हम दोनों प्रमोट करेंगे अपने आप को और तुमको भी। तो इसमें क्या हुआ कि लिंक हम लोग ने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के टाइम आप कोई भी ऑफर रख सकते हो। मैंने सिर्फ ये ऑफर बताया आपको, जो भी ऑफर चल जाए वो चला के आप अपनी लिंक दूसरे लिंक की लिंक अपने वेबसाइट पे ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड लिंक एक्सचेंजिंग। तो इस तरीके से आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, वो 4 पॉइंट यूज करके आप अपने वेबसाइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी वेबसाइट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तरीके हैं दो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा और बेल बटन पे क्लिक करिएगा कि मैं जो जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हर टाइम आता रहेगा।